Good having you. Guys, let's have a huge round of applause. Alim, the mic is all yours. Good evening, everybody. I hope you like the AV. Is there any reaction? No reaction. Superb. Great. So it was fun work. This is season 2, and after having a great season 1, we decided, me, Rajiv Bakshi, and the whole Discovery team, we decided to do season 2. And it was Samar Khan who, thought of this idea. And we met one day, and he thought of making a documentary on me. So then again, he was working on some concept. They said, why not to do a series where, all the actors, all the clients are very close to you. They're your close friends, and we can work out some really nice interviews, really nice series in a very candid way. So we thought of doing this, to shoot it very differently, use different cameras, and in a cool way to see all these actors. And we thought of doing this, and this is how the show has come out, and people are really liking the season 1. So this is the season 2, which is going to be aired on 20th October at 10 p.m. And I really enjoy working with TLC guys, and you can see मेरे दो अनमोल रतन, एक है जैम और एक है मक्खन, दोनों बहुत स्वीट हैं. क्या हम सेक्सी लग रहे हैं? बहुत सेक्सी लग रहे हैं. ये मेरा तकिया कलाम है. So I would love to have both of the guys on the stage speak few words. That what was their experience about styling with Alim Hakim? Just before Student of the Year started, I remember Mr. Manish Malhotra had taken me inside Alim's salon, and I was meeting him. And before that, I'd known that he had styled a lot of heroes in my dad's films. And my dad would always say that, go and cut your hair with Alim, udhar se katwana. And मैं थोड़ा embarrassed हो जाता था, because I was like, I wanted to stay away from films till I officially entered films. So then when Mr. Manish Malhotra took me in over there for my first film, I remember Alim keeping me and making me at ease, saying, don't worry, तेरे को कैसे बाल चाहिए, ये करेंगे, वो करेंगे. And I think in that film itself, he created 2 very distinct looks for me. For Rohan Nanda, one is the younger Rohan Nanda, and the older one, which is my favorite, and I'm guessing his favorite as well. And even the tattoos that I have in that film, that's from Alim sir. He designed those tattoos, he thought of them. So that's the relationship I share with him since the very first film till now. He's been part of every film, every journey. And just on this stage, I want to say thank you, Alim bhai, because whatever I am in life today is a big, you have a big hand in that, and you're a big part of my success. And hopefully in the coming years, you'll still have a very big part in my success. Thank you, bhai. आलिम भाई ने गुड इवनिंग बोला तो गुड इवनिंग ही बोलते हैं. नहीं, झूठ बोल तो मजाक कर. एक एक्टर के लिए, हर फिल्म के लिए एक नई लुक क्रिएट करना आसान लगता है, लेकिन होता बहुत मुश्किल है. एंड दैट्स वेयर somebody like Alim bhai comes in, because he's very patient, he's very observant, he keeps the director in mind, he keeps the actor in mind. वो फिल्म के स्क्रिप्ट को ध्यान में रखते हुए, कहानी को ध्यान में रखते हुए, और नए ट्रेंड्स को ध्यान में, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया देते हैं. आई एम वेरी वेरी लकी दैट आई मेट हिम very early in my career, because that has allowed both of us and all the other contemporaries to really have the benefit of one man who understands making your hair and your look cinematic. एक होता है कि आप पब्लिक में ठीक दिखे, पर एक होता है कि फिल्म के हिसाब से. आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर के हिसाब से. अगर आप मेरी फिल्म औरंगजेब देखिए तो हमने जो बाल किए थे, आई थिंक ही लव्स दैट लॉन्ग हेयर दैट आई हैड. फाइंडिंग फैनी में जब वी हैड टू प्ले अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेड बैक कैरेक्टर, वी गॉट अ डिशेवल्ड लुक. टैटूज इन्होंने अरेंज कराए थे सारे के सारे, होमी के साथ बैठ के बाकायदा. कियन का में बाल्की से वांटेड समथिंग क्वर्की, तो उन्होंने मेरे बाल बस कर दिए. और ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसीलिए कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ब्लाइंड फेथ एंड ट्रस्ट इन दिस मैन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेकिंग योर कैरेक्टर कम अलाइव. बहुत आसान होता है बोलना कि यार वो कैरेक्टर के हिसाब से ये कर लेंगे. एक चीज़ होता है बोलना और एक चीज़ होता है करना. सो आई थिंक आलिम भाई बोलते कम है, करते ज़्यादा है. And he's genuinely been able to do it with every film of mine, at least, including Half Girlfriend, जिसकी shooting कर रहे हैं. And उनके साथ एक अच्छी बात है, you can keep discussing. He's patient, he listens. So I'm very, very lucky to have a friend like him, who's also somebody who has helped my career move forward with every film. So thank you, Alim bhai. Like Varun said, you've played
a very, very important part in making me look sexy in all my films. ये दोनों जितने सीधे लग रहे हैं उतने सीधे नहीं है. They're behaving really, you know, like a well-behaved, mannered boys. ये दोनों बहुत ही चैप्टर और हरामी बच्चे हैं. आपने अभी बोला है तो हम बोल देते हैं कुछ. बेसिकली सीजन 1 में हम दोनों क्यों नहीं थे आलम भाई? क्योंकि हम लोग सक्सेसफुल नहीं थे. सीजन 1 में आप लोग चाइल्ड आर्टिस्ट थे. क्यों नहीं थे? सीजन 1 में कौन कौन था? रणबीर था, अजय सर थे, और तब आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर लगने वाला शाहिद और सैफ. स्टूडेंट ऑफ द ईयर लगने वाली थी, ईशा के साथ लग गई थी. और आपने एक इशारा भी किया था, क्या तू फ्री है क्या? वो मैं एक शो कर, पर आपने कभी वापस फोन नहीं किया. मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ. मैं वेट कर रहा था 2 स्टेट्स की कि जब जैसे 100 करोड़ कब में आएगा मैं अपने शो में ले लूंगा. क्या बात है. चलो आपने असलियत बोल दी. No, but honestly, it's actually a privilege हम दोनों के लिए that we are part of this show. We are part of TLC season 2 because I think actually जितने भी stars, जितने भी actors इनके show पे आते हैं, they're very very successful at what they do. They're very very good. तो आपको एक मकाम तक पहुंचना पड़ता है that you make it on this show, and I think that's fair enough. You get the best on your show. So thank you for getting us on the show. And the fact that we are here to launch the show means that we are the best. अरे बस कर. नहीं, but I would like to congratulate TLC since we are here to come up with such a cool concept to do a chat show. You know, there are so many of these kind of shows to bring something new to the table and to use Alim Bhai's personal ability of interacting with us and making a show around that goes, like you said, beyond hair and to make it a fully packaged show that is worth everybody's time. I think it deserves a big congratulations to the entire team for coming together and creating something very unique in today's time where it's difficult to be original. I think Alim Bhai and TLC and the entire team have managed to pull it off. So big congratulations. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. And now the floor is open for media Q&A. Before we go, I think big hand of applause to even Mr. Samar Khan, who's throughout. Mr. Samar Khan right there. Mr. Samar Khan, can you raise your hand, please? Can you please raise your hand, sir? छुप गया सर. Yeah. Oh, there. Yeah, okay. sir. Reflection is too much on the head, sir. All right. So the floor is open for media Q&A. जी. बतौर एक्टर या बतौर होस्ट आप किस पॉइंट? होस्ट के हिसाब से यार यू नो जब मैंने जो मेरा शो किया था खतरों के खिलाड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था. एंड हर माध्यम मुश्किल होता है, चाहे वो थिएटर हो, टीवी हो या फिल्म हो. आपको पूरा 100% देना ही पड़ता है. कुछ आसान नहीं होता एंटरटेनमेंट के बिजनेस में, बिकॉज टीवी के लिए आपको अटेंशन होल्ड करनी पड़ती है, वरना चैनल एक पल में बदला जा सकता है. तो व्हेन यू आर अ होस्ट यू हैव टू गिव इट 200% टू इंगेज द ऑडियंस एज वेल एज द पीपल अराउंड यू. दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है. जब आप एक दोस्त या एक कंटेस्टेंट या एक मित्र की तरह आते हो शो पे किसी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, इवन देन यू हैव टू गिव इट ऑल, बट एज योर सेल्फ, नॉट एज द होस्ट. यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू फ्रॉम योर पर्सनैलिटी टू एवरी एपिसोड, ताकि जब लोग देखे तो उन्हें ये नहीं लगे कि अरे अर्जुन को तो पिछले एपिसोड में भी किसी और शो में ऐसे ही देखा था. तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अलाइव, यू हैव टू कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक इन बोथ एस्पेक्ट्स. पर माइंडसेट्स अलग होते हैं. पर मैं बहुत कदर करता हूँ टेलीविजन के माध्यम की, बिकॉज आई थिंक हमारा जो कनेक्शन बढ़ने लगा है बतौर एक्टर वो टीवी के वजह से नहीं, मेरा और इसका नहीं बे. हम दोनों का कनेक्शन बचपन से है रे. हम दोनों मतलब हमारा कनेक्शन हमारे ऑडियंस से बढ़ने लगा है, बिकॉज हम टीवी शोज करते हैं, हम अवार्ड फंक्शंस करते हैं, हम बाकायदा जाते हैं प्रमोशन के लिए हर जगह. तो टीवी के थ्रू हम जहाँ पर्सनली नहीं जा पाते हम कनेक्ट कर पाते हैं. I think it's a very, very important medium, and I'm glad somebody like Alim Bhai has also got involved, because it allows many more people to know tomorrow if they want to do something interesting, cool, fascinating with their styling. There is a person available. कई सारे लोगों को पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं होगा, but now they'll come to know, which is amazing. बहुत लंबा जवाब दिया मैंने, घर जा सकते हैं अभी. छोटा पर्दा इतने बड़े स्टार को हैंडल नहीं कर सकता ना. इन्होंने सही बोला, इसलिए सबसे नहीं, बट आई थिंक अर्जुन बॉर्न ही हुए थे होस्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो वार्तालाप करते हैं, इतनी शुद्ध हिंदी में आप सबसे बात करते, तो एक ऐसा लग जाता है कि हैज दैट होल्ड एंड कमांड, एंड आई जेन्युइनली फील ही इज गॉट अ अमेजिंग वॉइस. बट सिर्फ तेरे लिए बोलता हूँ मैं, बट आई ऑनेस्टली थिंक ही इज अ वेरी गुड होस्ट, एंड आई एम वेटिंग टू सी हिम बैक ऑन
on TV as well. But आलिम भाई बहुत अच्छे host है, बहुत अच्छे दोस्त है, and he's done a great job with TLC season 2 as well. कैसा लगा मैं एज ए होस्ट यार? Sir, आप काफी chilled out हो. You keep it very casual, I've seen. मैं एक्चुअली मुझे थ्रेट लग रहा है कि अगले सीजन के लिए खतरों के खिलाड़ी आपको ना बुला ले होस्ट के लिए। वो Stunt करते वक्त आप बाल बना रहे हो लोग. स्टंट करते करते बाल बनाना। पोगो that's a पे कुछ different होगा format. मैं कर सकता हूँ। पोगो पे खतरों के खिलाफ बच्चों के लिए। एनी क्वेश्चन गाइस? पर्सनल लाइफ या फिल्म के हिसाब से आप बोल रहे हैं? बहुत ज़रूरी होता है कि फिल्म का कैरेक्टर क्या है, डायरेक्टर की डिमांड क्या है, और मेरा जो हाथ होता है बहुत छोटा होता है। मोस्टली ये टीम वर्क होता है जिसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो राइटर है, और जो मेन है वो डायरेक्टर और एक्टर होता है, क्योंकि डायरेक्टर एक विजुलाइज करता है कि उसको अपना कैरेक्टर किस तरह से निकालना है स्टेज पे। रॉकस्टार होते हैं, रॉकस्टार सब एक जैसे नहीं होते, या डॉक्टर होते, डॉक्टर सब एक जैसे नहीं होते, या कोई राइटर है तो राइटर सारे एक जैसे नहीं होते। आप जर्नलिस्ट हो और मीडिया में हो, सब एक जैसे नहीं है, सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। तो ऑडियंस को एक कोई नई चीज़ देखना बहुत पसंद आती है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, यूनिक कैसे है, और जो कभी पर्दे पे दिखी नहीं है। तो वही चीज़ आपको फैसिनेट करती है जो यूनिक हो, जो फर्स्ट टाइम दिखी हो। क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में जो सिनेमा होता है, जो कैरेक्टर्स होता है, हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, बट उसमें नयापन कैसे लेके आए वो बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वही डेवलप करने में टाइम जाता है, जिसमें एक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो आपको पता नहीं होता है कि 3-3 महीने से 4-4 महीने से वो कैरेक्टर को बिल्ड करने में इतनी मेहनत कर रहा है, बॉडी बना रहा है, डाइट चेंज कर रहा है, अपने लुक पे वर्कआउट कर रहा है, अपने कॉस्ट्यूम ट्राई कर रहा है, और फिर जाके वो पर्दे पे निकाल के लेके आता है कैरेक्टर। तो देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। समटाइम मूवीज़ डोंट वर्क तो एवरीवन फील्स वेरी सैड, बट जो एक्टर ने मेहनत की होती है बहुत ज़बरदस्त मेहनत की होती है। हमारा जो हाथ होता है वो छोटा होता है, ये पूरी टीम वर्क होती है, और सबसे बड़ा हाथ एक्टर का होता है, क्योंकि वो इस सब चीज़ से गुजरता है। जब वो कंटेंट टीम में होता है, दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो कुछ भी चीज़ नया करना हो तो उसके लिए एक विजन चाहिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए, और अंदर इनर पर्सनैलिटी में कन्विंसिंग पावर चाहिए कि मैं ये करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा और फाड़ दूंगा। तो मेरे ख्याल से वो इन लड़कों में है, इसलिए दे आर सच ए ह्यूज स्टार्स। So I think me and Arjun will ask Alim bhai some questions. थोड़े inside details आपको भी पता चलेंगे। Alim bhai, which director जो आपके पास आता है हर फिल्म के साथ, which director wants to change the look of his hero with every film? मतलब उसको वो कीड़ा है कि मुझे हर फिल्म में मतलब हीरो या हीरोइन डिफरेंट दिखाना है, ये बाल वाले से अलग करना है। Which director? एक नाम लेना है। आपने अनेक डायरेक्टर के साथ काम किया, नाम एक ही लेना पड़ेगा। लेकिन चेंज क्या हो गया? मेरे ख्याल से सब डायरेक्टर नहीं, है। नहीं, आलिम भाई एक नाम, one name. Don't be diplomatic. इम्तियाज अली। Imtiaz Ali. Okay. Which actor with every film? Because you also told me this. आपने भी मुझे पहले बोला है कि actors usually जो अच्छा दिख रहा है वही लेके चलो. That looks good. वो अच्छे दिख रहे हो आप. But which actor comes to हर फिल्म के साथ बोलता है नहीं आलिम भाई अभी चेंज करो, अभी चेंज करो. आप दोनों बैठे हो इधर, आप लोग नहीं, शक्ल हम- चेंज करते रहते हो यार। नहीं नहीं वो हमारी हम- तारीफ आप अलग तरीके से करो ना, ऐसे में। हर फिल्म में ना शाहिद, शाहिद कपूर. Actually, yeah, that's true with every film. I mean, in Urta also हैदर, superb. उड़ता पंजाब, he had a शाहरुख, great look. या उड़ता में 2 लुक थे, और वो फुद्दू किया था साइड में, और रियल में फुद्दू किया है, कुछ डिजिटली नहीं किया है या कुछ ऐसा नहीं किया है, और रियल में शेव किया है, एंड इट वाज ऑल हिडन। वो 15-20 दिन मीडिया के सामने नहीं आया था, घर में बैठा था। तो करने में मुझे रिस्क है, क्योंकि आपने ब्लेड से कर रहे हो, आप एक बार रॉन्ग हो गया। तो जो सेकंड हाफ में किया था वो थोड़ा टफ था, और फर्स्ट हाफ में एक्सटेंशंस थे। तो वो ट्राई करता है। हैदर में बस किया था। Whose fashion sense do you really admire the most out of all the actors? Because आप सबके घर के अंदर तक पहुंच चुके हो, not in the wrong way. आप you genuinely have the VIP pass into people's lives, because आप उस समय पे भी आते हो जब लोग एक्टरों से नहीं मिल पाते, आपको बाल काटने आना पड़ता है कभी। तो fashion- तो अभी बेड में काट देते हो बाल. पता नहीं वरुण ने करवाया होगा ऐसा, मुझे नहीं पता। फैशन इज समथिंग व्हाट यू, इट्स वेरी पर्सनल, यू नो। पर्सनालिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, द फुल 360 डिग्रीज की, यार ये बंदा जो है ना ये करेक्ट है, मतलब मुझे The ये whole बहुत package. इंस्पिरेशनल या एक्साइटिंग लगता है, हम संजय- दोनों को छोड़ के ऑब्वियसली। संजय दत्त, करेक्ट। because he has his own style, and you know, if you see styling episode, you'll get to see the collection of boots he has. You know, he is spoken about each and every boots from where all he's bought it. You know, आई थिंक द फर्स्ट मैन टू एक्सपेरिमेंट विद द बियर्ड आल्सो ना। yeah, he has done a lot of सारी experiments पिक्चरें from की है तो काटे, प्लान, हाँ, मुसाफिर,
So he experiments a lot with the facial buzz. So it's very important what you do, you know. Best. Alim bhai, which actor has the best real hair? वरुण, तेरा नाम किसी भी आंसर में नहीं लिया जाएगा. Best real hair. तो बालों का घोंसला तो जो मेरे लेफ्ट में बैठा है, मतलब he can Mr. be Rajiv Bakshi? अच्छा, No, sorry, no, right. मेरे लेफ्ट. तो he can be a hair donor. Yes, see कितने बाल है अर्जुन. अच्छा दोस्त ना मेरा, इससे मेरी तारीफ देखी ही नहीं जाती. मैं दिखा रहा हूँ तारीफ. किसी ने ये गलती से देखो. मेरी तारीफ कर दी तो इधर आ से गया. बाल ये देखो. निकाल के इसके देखो, ऊपर physical डाल रहे हैं. contact, देखो टच छूना चाहता है कि बर्बाद कर दे कैसे भी. Industry तू है ये इतना सेक्सी. क्या करूँ? दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन हूँ बड़ा सेक्सी टाइप. Sexy. So he can donate a lot of actors, you know. A lot of people are कितने में? suffering. Yeah, काफी लोगों को hair donate कर सकते हैं. दिया भी है. अनिल कपूर का भतीजा हूँ, कुछ तो होना चाहिए ना. सेम. So अगल से बगल से सब जगह से अब बगल बोलना जरूरी था. तो बाल ही बाल है. बगल के बाल रणवीर सिंह डोनेट कर सकता है actually. ये आप लोग पूछना अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अर्जुन बोल रहा था कि आप बगल के बाल भी डोनेट करना चाहोगे, क्या राज है इसका. वो लगाना कौन चाहेगा, ये इम्पोर्टेंट बट है. नहीं, फिर उसके- टच वुड आपने फिर तो बाल तारीफ की लगेंगे बालों उसके की. फिर स्प्रे भी मारना पड़ेगा ना, परफ्यूम भी मारना पड़ेगा. टच वुड आपने तारीफ की बालों की. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी दैट आई हैव डिसेंट हेयर एंड आई होप इट कंटिन्यू. Amazing है, Thank and it's quite versatile, you know. He has great hold also. So ये बहुत important होता है बालों के अंदर, hold factor. नेचुरली होल्ड होता है. ऑडियंस को होल्ड करो ना करो, बाल को तो होल्ड ही कर लो. हेलो आलिम जी. बॉम्बे से कि बाहर का? अच्छा, वहाँ पीछे मैडम से, इतनी right. दूर बैठी हैं आप, माइक जब तक पहुंचा हम लोग घर चले जाते हैं. आपसे ये सवाल करना चाहूँगी. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस इनिशिएटिव के लिए. आपके लिए कौन से स्टार की फिल्म आपके लिए चैलेंजिंग रही, खासकर उनके फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से? आलम से आपसे. पूछ रहे हो आप? हाँ जी. क्या पूछा? सॉरी मैंने सुना नहीं आपको. आप आपके लिए कौन सी फिल्म का कैरेक्टर जो था किसी एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था? Yeah. मेरे लिए मुझे लगता है कुछ ऐसे चैलेंजिंग होता है. लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो चैलेंजिंग है. मतलब क्रेडिट लेना चाह रहे हो? हाँ ऐसे, लेकिन प्रोफेशनल्स अगर आप हो तो आपके लिए कुछ चैलेंजिंग होना नहीं चाहिए. आपको चीज़ आनी चाहिए करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये होता है कि कई बार चैलेंजिंग इसलिए बोल सकते हैं कि आप डिफ़िकल्ट होता है कि कंटिन्यूटी है और एक ही जब बालों की लेंथ होती है, दैट टाइम व्हेन यू डूइंग टू कैरेक्टर्स और टू पार्ट्स, टू एराज, सो वो टाइम पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उसके लिए काफ़ी रिहर्सल्स करनी पड़ती है. जब एक्टर अपनी इतनी सारे बिजी स्केड्यूल से एक टाइम निकालता है, रात को मुझे अपने घर बुलाता है कि अभी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैं जाता हूँ इनके घर रात को प्रैक्टिस करता हूँ और फिर हम लोग मूवी में ट्राई करते हैं. तो ऐसा होता है हमेशा. तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्टर काफ़ी मेहनत करता है जो आप लोग को पता नहीं चलता है. तो एक्टर जो ये फ्री टाइम होता है रात को अपनी शूटिंग के बाद, ये सब बहुत लुक ट्राई करते हैं. जो पिक्चर करने नहीं वाले उसकी भी लुक ट्राई करते हैं लोग. तो आलम, जनरली कितना टाइम जाता है रिसर्च में जब आप कोई नई लुक दे रहे होते हैं किसी एक्टर को? रिसर्च में टाइम जाता है. मैं इनको अपनी जो मुझे पसंद है चीज़ें, जो मुझे स्टाइल करना, मैं इनको व्हाट्सएप करता हूँ. ये लोग देखते हैं, फिर लोग रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वापस भेजता हूँ, फिर रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वापस भेजता हूँ, फिर रिजेक्ट कर देते हैं. तो रिजेक्ट करते 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 बाद में लोग हाँ बोल ही देते हैं. नहीं, एक छोटा सा इंसिडेंट अभी हाल ही में हुआ था. आलिम भाई इज डन माय हेयर फॉर हाफ गर्लफ्रेंड आल्सो. हाफ गर्लफ्रेंड के लिए पहले मोहित, मैंने और आलिम भाई ने सोचा था कि बाल बढ़ाएंगे. वी थॉट विल ट्राई लॉन्गर हेयर, जैसे आलोक के है वैसे उससे थोड़े कम. वी थॉट विल ट्राई लॉन्गर हेयर. पर धीरे धीरे जब हमने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया, वी ट्राइड टू सी हाउ इट लुक्स आफ्टर स्टाइलिंग, कितना यंग लगता हूँ या कितना वो मेरे मैच्योर लुक के लिए हेल्प करेगा. सडनली Mohit also felt and Alim bhai also agreed immediately, saying, "Nahi, we should cut the hair off because the long hair is not going to work for the whole film." Now, it's very easy for him to say, "नहीं यार, वो लंबे बाल रखते हैं because हमने इतनी मेहनत की उगाने में और टेस्ट करने में." The style is working for a particular thought. Right. But if it's not working for a director, he's open enough to say, "No, I agree, you're 100% right. We'll figure a better look and we'll work something else out." So he's open enough to understanding what a director wants. That is very important. Personal life is different. Making a film is very, very different. And a director is allowed to, in that journey, in that process, discover what he likes. The actor is allowed to have an opinion. He never forces his opinion on us. He gives us options and he's very open to it. And that's I think the reason why he's so successful. He's always open to suggestion and he's a team player. That's very, very important. He's not thinking about मेरे picture के लिए मेरे बाल correct लगने चाहिए. It's about Right. film के लिए बाल correct लगने चाहिए या look correct होनी चाहिए.
आलम भाई चेक बाद में दे दूँ। वरुण, मैंने आपके साथ एक पिक्चर में काम किया था, आपने मेरा सीन डिलीट करा दिया, ऐसा क्यों किया आपने? We've actually acted in a film also together, आलम भाई and me. मैंने नहीं डिलीट किया था सर, किसी और ने किया था। आप इनसिक्योर हो गए थे मेरे परफॉर्मेंस देख के। पराग इधर ही है। पराग, तुम सीन्स डिलीट कराते हो यार, मैं तुमसे बच के रहूंगा। All right, last. कौन सी फिल्म थी वो? दिलवाले में कैमियो किया था आलम भाई ने। आपने तो बोल बच्चन में भी एक सीन किया है। हाँ। किसी को पता नहीं है, And लेकिन ट्रिविया। he's actually a very good actor, a trained actor. From मिठी भाई में ना। ट्रेंड हेडरेसर हूँ, एक्टर नहीं हूँ। All right, last question. Anyone? कोई और सवाल है कि हम बाकी लोगों से वार्तालाप करने जा Right सकते here, हैं? right here. जी। How nice. When you guys are planning a look for yourself or for the character, and a lot of time the director might demand something that you both are not comfortable with, and the hairstylist is in this soup. So how do you guys come to an agreement with that? ये झगड़े थोड़ी ना होते हैं कि नहीं मुझे नहीं, it's a team process. That's what I'm saying. What happens is it doesn't happen overnight, or it's not one particular juncture that you choose कि यही होगा. It's a very fluid process. And if I'm supposed to start another film in November, which is called Mubaraka. I've been discussing that with him and the director for the last 3 months. The process starts much earlier, so you have referencing, you have conversations, it's a back and forth, and then you come to the conclusion. So there is no rigidity in the system of operating ki, nahi, main comfortable. If the director knows I'm not comfortable, I can't make it look good, he also understands. If an actor feels, no, the director wants something, the actor works towards it. And he's almost like balancing both those sides out as well. So process is mutual, it's fluid, and it is time consuming. I know it sounds very vain to discuss this, ki, haircut itna zaruri hota hai, but it makes the whole character come alive. The beard, the way the clothes will fall if you have certain hair changes. Like if you have long hair, a certain kind of outfit suits you more. If you're cropping your hair, you got to wear. There's a lot of collaboration that happens, and it takes time. It's not like a one meeting कि आलम भाई बाल काट के दिखा दो कैसे लग रहे. It's a very fluid process, and you start much in advance. At least I do. I'm sure even. And also, it has to be very approachable when you're doing for the films. You have to relate with the character, and when you're doing for the photo shoot, it has to be a little high fashion. It has to be different because when you see a photograph, you see so closely. So there is no backdrop. There is nothing. You see tight pictures. You see on the phone. You zoom in the pictures. So everything has to be very precise and detailed when you do it for the photo shoots. But when you do for the film, it's a big canvas. Okay, there is a lot of character behind you. There is a background music. But when you see pictures, it's different. So when I style them for magazines, it's completely different hair. But when I do for the films, it's very approachable. That person is different, but he should look normal at the same time. His hair can't be whacked out unless until the character is completely whacked out. आलिम भाई का सिंपल हिसाब है कि लोग सैलून में आके पूछने चाहिए वो वाला हेयर कट दोगे जो वो पिक्चर में देखा था. If you can achieve that, that is truly a good style. Yeah. As in if somebody comes and says, यार मुझे इसका हेयर कट ये पिक्चर में अच्छा लगा, can you give me something like that? That's the coolest achievement you can have as a stylist. If there is a reference value created out of a look, and I think he's done many of those looks. Ki and Ka ke baad, there is a salon which is named after Ki and Ka, after his famous haircut. Yeah, there is a salon in Yari Road which is named after Ki and Ka because the haircut became so famous. वरुण, आप कुछ कहना चाहोगे इस विषय पे? चर्चा करना चाहेंगे? I just want to tell Mr. Rajiv Bakshi that season 3 of TLC is going to be hosted by Arjun. अरे मेरा पता You should sign him now. मैं हिंदी डब कर दूंगा आपका. Commentary. तू इतना क्यों? तेरे को जलने की स्मेल नहीं आ रही आप सबको? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तूने मुबारक का और हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते तो डेट भी बता दे, डेट भी बता दे. नहीं 28 जुलाई को लग रही है मुबारक का टाइम. कर दे इधर, उसके बारे में बात करते हैं. हाफ गर्लफ्रेंड में आएगी. मैं और आप चलते हैं. चलो हम लोग चलते हैं. अर्जुन का पूछ बताइए ना. हाँ, और क्या चल रहा है बाकी सबके साथ? फर्स्ट क्लास. ये देखो, ये वो है कि पीठ में छोड़ा भोग के गले मिलता है कि तुझे चोट तो नहीं आई. वरुण, तुम्हारी कौन सी पिक्चर की शूटिंग में तुम सिंगापुर जा रहे हो? Sir, I don't think this is the right place. I've come for Alim Bhai. I'll only talk about that. आप स्क्रिप्ट ले आइए, हम कल सुबह आ जाएंगे शूटिंग पे. साथ में ही काम कर रहे हैं अभी. हम लोग ने यारों की बारात एक शो है, हम लोग साथ में गए थे. हम लोग ने आलिम भाई का जो लॉन्च है सीजन 2 का वो भी साथ में किया है. एंड कॉफी विद करण भी साथ में ही कर रहे हैं हम लोग. तो हम लोग को फिल्म करने का मौका नहीं मिल रहा है. शादी भी सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं साथ में. आई थिंक इसके बाद अगर ऑफर नहीं आई तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी पेयरिंग नहीं वर्क कर रही. बट देखते हैं.
पिक्चर का तो पता नहीं, बट आई थिंक व्हेनेवर वी डू इट विल बी गुड फन. वी बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट हैपनिंग, पर वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस की तरह आना चाहिए. There's something. हम बिल्कुल भी इसलिए ये सब चीजें नहीं कर रहे ताकि कोई हमें कास्ट करे. हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि हम बाहर निकले साथ में. But honestly, I think बहुत सारे आइडियाज हैं जो अर्जुन और मैं करना चाहते हैं साथ में. लेकिन हमारे आइडियाज कोई नहीं सुनता. But कोई सुन रहा नहीं, शायद कोई सुन भी ले. But I think बहुत अर्ली है इसके बारे में अभी बात करना. अगला इवेंट जो कल है उस पर बात करेंगे. शाम को मेरा नहीं, डिसुम का है रे. मैं आ सकता हूँ उसमें, कोई भरोसा नहीं मेरा. All right. Any other questions? All right. Thank you so इतने much. हेडलाइंस दे दिए, काफी है. Thank you चलिए. so much, ladies and gentlemen. Thank you. थैंक यू एवरीबॉडी. आपके बाल ब्लो ड्राई करते हैं. आपके बाल ब्लो ड्राई करते हैं. कितना बचा है? ये जो हमें तोहफा मिला है, I would like to thank my family for this award. सीजन नहीं चाहिए. तू तो बात करता क्या है? आलिम भाई अभी उठा लेना चाहिए. चलिए. Thank you so much, guys. Please do watch on 20th October, 10 p.m. अरुण सोलो ही है. VT and 40 go.